Pratik, and today in Study with Pratik we are going to discuss the second part of the chapter first of class 10 geography, resources and development. And in this part we are going to discuss about the development of resources. We are going to discuss about the Rio de Janeiro Earth Summit, the Agenda 21. We are going to discuss about the resource planning and many other things like land resource and land resource pattern in India. So let's proceed and start our video. Okay, so now we have discussed about the resources, uska definition kya hai. We have also discussed about the classification of resources. Now we will talk about the development of resources. The chapter itself talks about resources and development. Okay, so how these resources which we have currently with us, उसका हम development, उसका हम विकास किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में हम discuss करेंगे. Alright, तो we all know कि resources हमारे लिए human survival के लिए कितना vital है, कितना important है, कितना significant है. Okay, उसकी importance बहुत ही ज़्यादा है हमारी life में. It was believed that resources are free gifts of nature, so human beings use them indiscriminately, and this has led to following major problems. Alright, ऐसा माना जाता था कि जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स है, वो बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में हमको मिले हैं और इसको हम कितना भी यूज़ करेंगे ये पूरे होने ही नहीं वाले. लेकिन दिस इज द रॉन्ग बिलीफ. ऑलराइट, वी हैव सम मेजर प्रॉब्लम्स because of the overuse of resources. Alright, the first problem here is depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. कुछ चंद लोगों के लालच के कारण रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है. डिप्लीशन मतलब वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और धीरे धीरे हमारे पास जो रिसोर्सेज के जो भंडार है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं. द रिजर्व्स आर गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे. द सेकेंड major problem is the accumulation of resources in few hands, which divides the society into rich and poor. जो पावर है, जो रिसोर्सेज जिसके पास उसकी पूरी ओनरशिप है, वो कुछ ही लोगों के अंडर में है, कुछ ही रिच पीपल के हाथों में है. तो उसके कारण क्या हो रहा है, सोसाइटी में रिच और पुअर का जो डाइवर्जन है वो बढ़ता जा रहा है. ऑलराइट, द थर्ड पॉइंट, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. So these are the four main, you can say, the exploitation of the earth is going on. By what? The ozone layer is depleting day by day. Okay, the global warming is increasing. The whole globe is getting warm day by day. Alright, environmental pollution, all kind of pollution, the noise pollution, the air pollution, it is all happening because of the greed of human beings. Okay, then the land degradation. The land degradation is also happening day by day. We are overusing plastics, we are throwing it anywhere. Because of that, the soil pollution is increasing day by day. And these are the major problems which are faced by the resources which the earth is facing these major problems. And these are all because of the human beings. Alright, and we need to break these all things. Okay, we need to stop these all things and we need to think wisely before using the resources. Alright, so what can be done to develop resources? For a sustained quality of life and global peace, an equitable distribution of resources has become essential. Equitable distribution of resources. Now what is the meaning of equitable distribution of resources? There is difference between equality and equitability. Alright, what is equitability? कि हर एक इंसान को जिनको भी resources की ज़रूरत है उनको equally resources मिले. Alright, and the next point is, for using resources judiciously we need to adopt. What we need to adopt? We need to adopt sustainable economic development. Now what is this new term which you have already learned in class 8th, class 9th, you have learning since many years. Okay, sustainable economic development. What is the meaning of this term? See, sustainable economic development shows that development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. हिंदी में इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास. ओके, सतत पोषणीय आर्थिक विकास जिसको हिंदी में बोला जाता है. व्हाट इज सतत पोषणीय? ओके, सतत मतलब हमेशा बार बार उसको पोषण मिलता रहे, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे. हाउ, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर टॉकिंग अबाउट? दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भी उतना ही रिसोर्सेज मिले जितना हमें मिले हैं. ओके, तो उस तरीके से हमें सस्टेनेबल वे में जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करना है, जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ हम कॉम्प्रोमाइज ना करें और उनकी नीड्स भी फुलफिल हो. We
we talked about how the resources development is needed and how the resources are getting exploited and depleted day by day. But now we must discuss that what has been done in the past about conserving these resources, okay, on how we are conserving these resources, what we have done. We will talk about the two main conventions or the declaration. The first one is the Rio de Janeiro Earth Summit, which was held in 1992 in the country of Brazil, and Agenda 21. So first of all, let's discuss about this Rio de Janeiro Summit. So Rio de Janeiro Earth Summit, Rio de Janeiro, you know very well, it's a city in Brazil, and in 1992 June month this convention was done. So what happened in that convention? That it was the first international Earth Summit. Now what is the meaning of this Earth Summit? To conserve the earth, to conserve the resources in the earth, to save the biodiversity of the earth. These Earth Summits are done. Alright, so this was the first international Earth Summit where many countries had participated. Alright. In the Rio de Janeiro Earth Summit, they convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. So at the global level, they were thinking for the conservation and for reaching everyone that the urgent need is there to conserve all these resources, to conserve the environment, and we need to see the socio-economic development. Alright, they signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity. ओके, तो एक डिक्लेरेशन उन्होंने सिग्नेट किया, उन्होंने साइन किया, जिसमें ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के बारे में सारी चीज़ें दी गई थी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव करने के लिए भी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी. नाउ द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी. तो 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लागू करने के लिए एजेंडा 21 का सहारा लिया गया. एजेंडा 21 क्या था, क्या है, हम डिस्कस करेंगे. और जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे उनको भी ग्लोबली उनको एंडोर्स किया गया रियो कन्वेंशन के द्वारा. नाउ लेट्स डिस्कस एजेंडा 21 क्या था. डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992. उसी साल 1992 में वर्ल्ड लीडर्स ने ये डिक्लेरेशन में सिग्नेचर किया था. सभी वर्ल्ड लीडर्स ने जो अलग अलग कंट्रीज से आए थे एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED. ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन था जिन्होंने कॉन्फ्रेंस हेल्ड की और उस कॉन्फ्रेंस में सारे ही वर्ल्ड लीडर्स ने डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर किया, जिसको एजेंडा 21 कहा जाता है. ये रियो डी जेनेरो में ऑफ कोर्स हुआ था, ब्राजील में. एम क्या है एजेंडा 21 का? एम क्या है? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इट्स एजेंडा टू कॉम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज. इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना उनका एक फर्स्ट एजेंडा. पोवर्टी को, देन डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट. ओके, तो इन तीन और म्यूचुअल नीड्स और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये इनकी एम था. एजेंडा 21 का ये एम था कि इन्वायरमेंटल डैमेज, पोवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, इन सबको मेंटेन करें, इन सबको ठीक किया जाए और एक नए अर्थ का निर्माण किया जाए. ऑलराइट, मेजर ऑब्जेक्टिव्स इनका ये था कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा. इसका एक बहुत ही बड़ा एजेंडा था कि लोकल गवर्नमेंट के हर एक कंट्री को अपना एक एजेंडा 21 बनाना होगा, जिसमें वो सारे पॉइंट्स हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स हो, जिसको हम इन्वायरमेंट को और रिप्लेनिश कर सके, हमारे रिसोर्सेज को और ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिच कर सके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूल को फॉलो करना पड़ेगा. So this was all about Agenda 21 and Rio de Janeiro Earth Summit. Okay, so now we have discussed about the development of resources. Okay, we have discussed about the Rio de Janeiro Earth Summit of 1992. We have discussed about the Agenda 21. Now let's discuss about the resource planning in India, या फिर resource planning in general. Okay, resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources. दो बहुत ही important चीजें यहाँ पे दी गई है. Identification होना चाहिए. Okay, resource जो भी है, रिसोर्सेज कहाँ कोई भी रीजन में है तो वहाँ पे उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. उस रिसोर्स को हमें पता लगाना है कि वहाँ पे कितना रिसोर्सेज है. इन्वेंटरी, हमें पता लगना चाहिए कि रिसोर्सेज पर्टिकुलर जगह पे है, पर्टिकुलर रीजन पे है, और वहाँ से हमें उसको प्रोक्यूर करना है. ओके, अब इस आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज के अंदर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, पॉइंट में ब्रेक डाउन कर दिया है. दिस इन्वॉल्व्स सर्विंग. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इट इज बिट ब्लर, but I hope it is visible to you. Okay, the first one is survey, the second one is mapping, third one is qualitative and quantitative estimation and the measurement of resources. Now ये क्या बोलता है कि कोई भी रिसोर्सेज का हमें पता लगाना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें सर्वे करना है, उस रिसोर्सेज का सर्वे करना है कि भाई वहाँ पे कितनी
क्वांटिटी में कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे रिसोर्सेज होगा, हमारे पास सारे रिक्वायर्ड डेटा होने चाहिए. ओके, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड द मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज. वी शुड नो कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज है वहाँ की क्वालिटी कैसी होगी, वहाँ कितनी क्वांटिटी में रिसोर्सेज होगा. ओके, और वहाँ का मेजरमेंट, कितना वहाँ पे क्वांटिटी होगा और वहाँ हमें मेजरमेंट होना चाहिए कि भाई हमें कितना वहाँ पे कॉस्ट लगेगा, कितना हमारा इकोनॉमिक वैल्यू वहाँ पे स्पेंड होगा. ऑलराइट, नाउ द सेकंड पॉइंट इन रिसोर्स प्लानिंग इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स. रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को लागू करने के लिए वहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए और इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए. अगर ये तीन चीजें हैं तो हम अच्छी तरह रिसोर्सेज को प्लानिंग कर पाएंगे, रिसोर्स को प्लान कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से उसको प्रोक्यूर भी कर पाएंगे, so that it will be future oriented. मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. ओके, नेशनल डेवलपमेट जैसे हमने एजेंडा 21 में पढ़ा था. एजेंडा 21 में क्या कहा था कि एजेंडा 21 इज एन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड एजेंडा, इट्स एन अंडरस्टैंडिंग, यू कैन से. ओके, और हर एक लोकल गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप अपने लोकल गवर्नमेंट में लोकल लेवल पे आप एजेंडा 21 क्रिएट कीजिए. ओके, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर एक लोकल लेवल पे, एक लोकल रीजन पे यहाँ पे हमें रिसोर्सेज मिलता है, अगर इफ वी फाउंड रिसोर्सेज, देन we should see it in a overall context of national development plans. Okay, अगर हमें यहाँ से रिसोर्सेज मिला है तो वो रिसोर्सेज की कितनी इकोनॉमिक वैल्यू है और वो how it will help to the national economy. We should check that also. So this was all about the resource planning. Now let's discuss about the land resources. Okay, how much land is significant to us, how much it matters to us और इसकी importance हमारे लाइफ में क्या है. Alright, so land resources. So land resource, you know very well, land is a natural resources and which is of utmost importance. बहुत ही ज़्यादा importance land हमारे लाइफ में रखता है, because you know that 70% of the earth is water. Okay, all the water bodies, the ocean and all, and the 30% of the earth is land, but not totally land. Okay, the topography is very rough. The topography is very rough. You have already learned in your class 11th physical geography. What you have learned that 30% of is land, but we are not sure about that. We have glaciers, okay, we have then mountains, we have plateaus. Okay, so the topography, the landforms are very irregular, they are very rough. All right, now the land supports the natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. So these all things are dependent on land. Okay, अगर land है then the natural vegetation will survive and will be very replenished. Okay, wildlife will survive very well, human life बहुत बेहतरीन होगी. Okay, economic activities will be very good and transport and communication systems will be very good. Okay, अगर transport and communication systems को effective और efficient करना है तो land should be very plain. Okay, plain regions में you know very well the networks are very good, but in the plateau, in the mountainous region, the networks of the phone and the cellular networks are very less. Why? Because of the regularity of the land. All right, now let's discuss about the land resources in India. कि इंडिया में land resources का क्या bifurcation है. Okay, so about 43% of land area, 43% of land area in India is plain. Is what? Is plain. Plain मतलब कि सीधा मतलब region. You can say flood plains. Okay, flood plains जैसे आपने उत्तर प्रदेश और बिहार के flood plains के बारे में 11th में पढ़ा है, 9th 10th में भी पढ़ा है. वहाँ पे सबसे ज़्यादा population concentration होता है. Why? Because in the plain regions the facilities for agriculture and the facilities, overall facilities are very effective and very good as compared to plateaus and mountains. If you talk about the 30% of land of India, okay, you know very well that 32.8 lakh square kilometer area of India is, sorry, it is land area of India. Okay, ये land area of India है. Okay, उसमें से जो 30% एरिया है, 43% प्लेन हो गया, 30% एरिया जो है वो प्लेटो है, पठार जिसको हिंदी में बोलते हैं. ओके, प्लेटो में क्या होता है? प्लेटो possesses rich reserves of minerals and fossil fuels and forest. प्लेटोज में रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रमाण में आपको मिनरल्स मिलते हैं, आपको वहां से आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं और फॉरेस्ट मिलते हैं. ओके, व्हाट आर द बेस्ट एग्जांपल्स इन इंडिया? डेक्कन प्लेटो, वी हैव छोटा नागपुर प्लेटो, द रीजन्स और द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, झारखंड एंड छत्तीसगढ़. वहां पे सेकेंडरी एक्टिविटीज ज्यादा होती है. क्यों? बिकॉज दैट आर प्लेटो रीजन्स और वहां से सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल रिजर्व्स मिलते हैं और वहां से मिनरल्स मिलने के कारण द पीपल देयर आर, वो संलग्न है किसमें? द्वितीयक क्रियाओं में. द्वितीयक मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज में. ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट, इफ यू टॉक अबाउट द 27% एरिया ऑफ लैंड एरिया ऑफ इंडिया, then it constitutes the mountain. The mountain constitutes the 27
percentage land area of India. Okay, we have the example the Great Himalayas, the Aravalli Ranges, the Nilgiri Hills. Okay, so these are the best examples of the mountains. 27% of land area, total land surface of India is mountains, 30% is plateau, 43% is plain. Okay, now you have learned and discussed, we have discussed about the land resources and land resources in India. Now we will be talking about the land use pattern in India, that how the land use pattern is there in India. किस तरह से इंडिया में जो भूमि है, इंडिया में जो लैंड है उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, उसका हम डिस्कशन करेंगे अब. ओके, सो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय, देयर आर सम फैक्टर्स. ओके, देयर आर सम पॉइंट्स जिससे लैंड यूज को डिटरमाइन किया जा सकता है. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स. ओके, तो जैसे हमने 11th में भी हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा था कि लैंड यूसेज या लैंड पैटर्न किसी भी एरिया का किस तरह से डिटरमाइन किया जाएगा, तो फिर उसमें सबसे मेन पॉइंट्स आता है टोपोग्राफी, वहाँ की लैंड स्ट्रक्चर कैसा है. ओके, वहाँ की लैंड रेगुलर है, इरेगुलर है, रफ है या अच्छी है. ऑलराइट, क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट देखा जाएगा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड है, एरिड है, वो देखा जाएगा. वहाँ की सॉइल टाइप. ओके, सॉइल टाइप के बारे में आगे चैप्टर में बहुत ही वास्ट है, द टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड ऑल अबाउट द सॉइल. ऑलराइट, the first is this, the physical factors. Okay, physical factor से land pattern determine किया जा सकता है. Okay, land use pattern, sorry. Okay, human factors, the second factor is the human factors such as population density, technological capacity and cultural and tradition. Okay, culture and traditions. Okay, इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन डेंसिटी कोई भी लैंड एरिया की कितनी है. सपोज हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इंडिया की, तो इंडिया में उत्तर प्रदेश स्टेट है, सो इट इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया. व्हाई? बिकॉज देयर इज प्लेन्स. ओके, वहाँ पे कल्चरल इंपॉर्टेंस है. व्हाट इज द कल्चरल एंड हेरिटेज इंपॉर्टेंस? वहाँ पे वाराणसी है. ओके, बनारस यू कैन से, वहाँ पे मोस्ट ऑफ पिलग्रिमेज यू कैन से दैट इज अ पिलग्रिमेज सेंटर. ऑलराइट, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे जाते हैं. और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाँ फ्लड प्लेन्स है, गंगा का पूरा फ्लड प्लेन्स है, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही रिच होता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहता है. टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी मतलब कि यू कैन सी द सॉफ्टवेयर, यू नो द सॉफ्टवेयर सिटीज अब जो इंडिया में डेवलप हो रहे हैं. ओके, आईटी सिटीज आप कहते हो, जैसे बैंगलोर है, तो बैंगलोर इज अबाउट पुणे है. ओके, फिर बॉम्बे है. दीज आर ऑल टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटीज. ओके, जहाँ पे जो प्राइमरी एक्टिविटीज है बहुत ही ज्यादा होती है. ओके, तो इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है और वहाँ पे लैंड यूज भी ज्यादा होता है. Alright, now the third point is land use data. However, available only for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeastern states except Assam hasn't been done fully. Okay, तो हम बहुत ही एकदम एक्यूरेट लैंड यूसेज पैटर्न इंडिया का नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि जो 7 सिस्टर्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया की, वहाँ पे जो सर्वे है वो अच्छी तरह नहीं हो पाया है. क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी. वहाँ का जो लैंड लेवल्स है वो बिल्कुल ही इरेग्युलर है. वहाँ पे कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे वैलीज है. ओके, तो कहीं पे कैनियंस जैसे बहुत ही बड़े बड़े खाइया है, तो वहाँ पे हम लैंड यूसेज को डिटरमाइन नहीं कर सकते. वहाँ पे हम सर्वे बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाते. एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ आसाम. आसाम इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ओके, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है और वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा है कंपैरेटिवली दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, इसीलिए वो एक्सक्लूड कर दिया गया है. यहाँ पे सिर्फ 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को हम सर्वे कर पाए हैं. हम उसका जो डेटा है उसका ही अवेलेबल है हमारे पास, सिर्फ 93% डेटा. अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की. सम एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाक. राइट नाउ इट इज ओनली जम्मू इज अ यूनियन टेरिटरी नाउ. यू नो ना, इट इज एन जनरल नॉलेज का है कि जम्मू इज एन यूनियन टेरिटरी नाउ. लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर previously was called a state before the abolition of the article 370. Okay, now some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China has also been surveyed. Okay, तो जो एरिया चाइना और पाकिस्तान खुद का क्लेम करता है वो एरिया भी इंडिया ने खुद के लैंड यूसेज एरिया में उसको डिटरमाइन किया है, उसको इंक्लूड किया है. Now let's talk about the land degradation and conservation measures. किस तरह से लैंड डिग्रेडेशन आज के टाइम पे हो रहा है और किस तरह से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं अपने लेवल पे, वो हम डिस्कस करेंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन. किस तरह हुआ लैंड डिग्रेडेशन? बिकॉज देयर इज डिफॉरेस्टेशन. ओके, बहुत ही पेड़ों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट
दिन ब दिन फॉरेस्ट को डिप्लीट किया जा रहा है, बहुत पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑलराइट, ओवर ग्रेजिंग, बहुत बार ओवर ग्रेजिंग, कैटल के कारण ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, जिससे ग्रासलैंड्स डिप्लीट होने लगते हैं। माइनिंग, ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल कि जितना भी माइनिंग हो रहा है हमारे प्लेन्स डिप्लीट होते जा रहे हैं। माइनिंग के कारण वाटर लॉगिंग बढ़ रहा है। ऑलराइट, देन क्वेरिंग, क्वेरिंग इज ऑल अबाउट लाइक माइनिंग ओनली। जिस तरह से माइनिंग होता है वैसे क्वेरिंग होता है फॉर द मिनरल्स, फॉर द पर्पज ऑफ मिनरल्स। मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। Okay, so this was all about land degradation. क्यों हो रहा है? What are the factors which are responsible for land degradation? Now we will be talking about the measures to control land degradation. Land degradation को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे 6 पॉइंट्स दिए गए हैं। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज एफॉरेस्टेशन। जितना ज्यादा हम पेड़ प्लांटेशन करेंगे उतना ज्यादा हमारी ये ज्यादा होगा। अगर प्लांटेशन होगा, प्लांट्स है, तो सॉइल की जो सॉइल पकड़ने की जो कैपेसिटी है, सॉइल इरोजन कम होगा, जिससे लैंड डिग्रेडेशन भी कम होगा। ऑलराइट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो आप देख सकते हैं जैसे ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे दिल्ली में। ओके, बनाया गया, कई जगह पर ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए। नाउ व्हाट इज दिस ग्रीन कॉरिडोर्स? दैट इज ऑल अबाउट द शेल्टर बेल्ट्स। प्लांटिंग किया जाता है और प्लांट से एक पूरा शेल्टर बेल्ट बनाया जाता है, जो भी लैंड कंजर्वेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम खुद ही ग्रासलैंड्स को उगा सकते हैं और फिर उसी ग्रास को हम ग्रेजिंग के लिए अपने कैटल को दे सकते हैं, ना कि हम नेचुरल ग्रासलैंड्स को डिप्लीट करें। द फोर्थ पॉइंट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। ओके, तो जो सैंड ड्यून्स है उसका रिप्लेसमेंट बहुत बार हो जाता है। जब भी स्ट्रोम्स आते हैं, जो लैंड स्ट्रोम्स आते हैं जब डेजर्ट एरियाज में, तब क्या होता है कि सैंड ड्यून्स रिप्लेस हो जाते हैं, बहुत ही रिप्लेस हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें थॉर्नी बुशेस ग्रो करने चाहिए, जिससे वो पूरी सैंड को पकड़ के रखे, वहां पे उसको पकड़ के रखे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स। जितने भी वेस्ट लैंड्स है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। उसका अच्छी तरह से, जितने भी सिविक अथॉरिटीज है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जितने भी वेस्ट लैंड्स है, ओके, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, जिससे लैंड डिग्रेडेशन ना हो। The sixth and the final point in the measures to control the land degradation is control of mining activities. जितना हम माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करेंगे, जितना कंट्रोल वे में हम माइनिंग करेंगे, जितना मैनेजमेंट उसका होगा, जितना प्रॉपर वे में होगा, उतना ही हम लैंड डिग्रेडेशन से हमारे लैंड्स को बचा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव रूप से, यूजफुल रूप से, पॉजिटिव रूप से हम हमारे लैंड को यूज कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द measures to control the land degradation, and about land degradation, how we can conserve the land, and the land use pattern in India. Okay guys, so this was all about the land resources in India, the land resources pattern in India. Alright, we discussed about the Rio de Janeiro summit, we discussed about the Agenda 21, we discussed about the development of resources. In the next part, we will be discussing about the soil. Okay, we will be discussing about soil, why soil is important to us, and its importance and its classification. Alright, so stay tuned guys. Till then, bye bye. Make sure you subscribe this channel, like this video, and comment it down below whatever the queries and problems you have. Thank you so much for watching.